students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Right? Kids, our chapter is 4, the nervous system. Right? In last session, what I explained you? I explained you all the things about the nervous system. Right? In today's session, I am going to explain about nerves, the spinal cord, and the reflex actions. ये सारी चीजें मैं आपको इसी सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगी. But before I start explanation of today's section, let me help you to revise all the things about last sessions, vocabulary words, meanings, and all about the nervous system. So let's begin that. फटाफट से vocabulary words देख लेते हैं. Number 1, nervous, N-E-R-V-O-U-S, nervous. Number 2, cerebrum, C-E-R-E-B-R-U-M, cerebrum. Number 3, cerebellum, C-E-R-E-B-E-L-L-U-M, cerebellum. Number 4, brainstem, B-R-A-I-N-S-T-E-M, brainstem. Number 5, nerves, N-E-R-V-E-S, nerves. Number 6, sensory, S-E-N-S-O-R-Y, sensory. Number 7, reflex, R-E-F-L-E-X, reflex. Number 8, nasal, N-A-S-A-L, nasal. Number 9, mucus, M-U-C-U-S, mucus. Number 10, nostrils, N-O-S-T-R-I-L-S, nostrils. Next, number 12, cavity, C-A-V-I-T-Y, cavity. Number 13, retina, R-E-T-I-N-A, retina. Number 14, pupil, P-U-P-I-L, pupil. Number 15, iris, I-R-I-S, iris. Now kids, meanings, right? Motor. I'm only going to read all the meanings. Try to listen, okay? Number 1, motor, relating to muscular movement or the nerves activating it. Number 2, sensory, connected with your physical senses. Number 3, reflex, an action or a movement of your body that happens naturally in response to something and that you cannot control. Number 4, mucus, a sticky substance that is produced in some parts of the body, especially the nose. Number 5, nostril, the 2 openings at the end of your nose that you breathe through. Clear kids? Here we completed our meanings also. Now last session में क्या nervous system में किससे क्या activity होती है दीदी ने explain किया था. फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देते हैं. The nervous system controls all the organs of the body. हमारे सारे के सारे organs को कौन प्रोटेक्ट मतलब कौन कंट्रोल करता है? हमारी नर्वस सिस्टम. हमारी नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? द ब्रेन, नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द नर्वस सिस्टम. इससे क्या बनती है? हमारी नर्वस सिस्टम. किससे कौन कौन से पार्ट्स से हमारी नर्वस सिस्टम फॉर्म होती है? द ब्रेन, नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड. Now next, the brain. The brain is located inside the skull. Brain है वो हमारे skull के नीचे located है. It controls our body movements. हमारे body movements को कौन control करता है? Brain. It also helps us to store information. सारे के सारे information को भी कौन store करता है? Brain. The human brain has 3 main parts: cerebrum, cerebellum, and brainstem. Number 1, cerebrum. It is the largest
mainly controls the functions of our sense organs. Now cerebellum. It is situated below the cerebrum. It mainly controls the working of the muscles. Now last one, brainstem. It lies beneath the cerebellum. It connects the brain to the spinal cord. It controls the heartbeats and breathing. Clear kids? Now let's begin our today's session. सबसे पहले nerves. A nerve carries messages between the brain, the spinal cord and the other parts of the body. Nerves का क्या काम है? हमारे पूरे बॉडी में सारी की सारी nerves होती है ना, वो मैसेजेस पास करती है। क्या करती है? मैसेजेस पास करने का काम करती है। मैं ऐसे हैंड्स कर रही हूँ तो वो तो ऐसे तो नहीं हो रहे, फटाफट से सपोज आई एम टेलिंग यू कि आप अपनी मम्मा को बोल दोगे कि कल दीदी से मिलने के लिए आना है, तो आपने मैसेज पास किया तो भी आपकी मम्मा को पता चला ना कि दीदी ने ऐसा मैसेज पास किया। अदरवाइज मम्मा को पता चलता नहीं, पता चलता। तो बिल्कुल हमारे बॉडी पार्ट्स में हमें मूवमेंट करनी है, कुछ भी एक्शन करना है, तो उसके लिए ब्रेन को मैसेज को पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैसेज को पास करना पड़ेगा। ये कैसे? हैंड्स अप, तभी नर्व ये ब्रेन का मैसेज हैंड्स के पास लेके जाती है कि हैंड्स को अप करना है, यू आर सपोज टू सिट डाउन। तो ये किसी भी पार्ट को मैसेज पहुंचाने का काम किसका है? नर्व्स का है। अगर लेग का काम हैंड करेगी नहीं, हैंड का काम स्टमक करेगा नहीं, तो नर्व्स सही इंफॉर्मेशन सही पार्ट तक पहुंचाती है। कौन कौन से? जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, और वो भी दूसरे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाने का काम किसका है? नर्व्स का। किसका है? नर्व्स का। आई होप सो यू क्लियर किड्स। Nerves are of three main types. यहाँ पे ब्रेन के भी 3 मेन टाइप्स थे, नर्व्स के भी 3 मेन टाइप्स है। कौन कौन से 3 मेन टाइप्स की नर्व्स होती है? नंबर 1 मोटर नर्व्स, नंबर 2 सेंसरी नर्व्स एंड नंबर 3 मिक्स्ड नर्व्स। चलो मेरे साथ साथ आप 3 टाइप्स बोलोगे। नंबर 1 मोटर नर्व्स, नंबर 2 सेंसरी नर्व्स एंड नंबर 3 मिक्स्ड नर्व। वंस अगेन, मोटर नर्व्स, sensory nerves, mixed nerves. Motor nerves, sensory nerves and mixed nerves. Clear kids? Now सबसे पहले sensory nerves carry messages from the sense organs to the spinal cord or the brain. Sensory nerves जो होती है ना, sensory nerves वो messages को carry messages from the sense organs. सेंस ऑर्गन्स से के पास से हम वो मैसेजेस कैरी कर वो किसको पहुंचाती है? या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड को या तो फिर ब्रेन को। तो ये किसका वर्क हुआ? सेंसरी नर्व्स का। क्या हुआ? किसके? वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। इसके पास से मैसेजेस को कैरी करके मतलब लाके किसको पहुंचाती है? या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड को या तो फिर ब्रेन को। क्लियर किड्स? वंस अगेन आई एम रीडिंग। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन। क्लियर किड्स? 5 सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को कैरी करके या तो फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को या तो फिर ब्रेन को पहुंचाती है। नाउ मोटर नर्व्स। Motor nerves carry instructions from the brain or the spinal cord to the sense organ. Sensory organs, sense organs से मैसेज लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाते थे, राइट? तो ये मोटर नर्व्स है ना, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लेके किसको पहुंचाती है? सेंस ऑर्गन्स को। किसे पहुंचाती है? सेंस ऑर्गन्स को। आपको क्लियर डिफरेंस पता चला कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या करती है कि सेंस ऑर्गन्स से मैसेज लेके ब्रेन या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाती है। तो ये क्या करती है? मोटर नर्व्स। तो क्या मोटर नर्व्स कैरी इंस्ट्रक्शंस। मोटर नर्व्स इंस्ट्रक्शन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कैरी करके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स को पहुंचाती है।
कि यहाँ पे सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके किसके पास पहुंची, सेंस ऑर्गन्स के पास पहुंची। क्लियर किड्स? डिफरेंस बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। नाउ मिक्स्ड नर्व्स। Mixed nerves carry messages to the brain as well as bring back instructions from the brain. Mixed nerves का क्या होता है कि वो messages को carry करके brain के पास as well as वो brain के पास instruction भी पहुंचाते हैं और as well as वो सारी की सारी information पहुंचाते भी और वापस लेके भी जाते हैं। Mixed nerve का क्या काम है? Mixed nerves carry messages to the brain as well as bring back instructions from the brain. मैं आपको बोलूंगी कि kids go and bring book for me, फिर आप बुक लेके भी आ जाते हो मेरे पास, राइट? फिर अगेन इंस्ट्रक्शन लिए भी ना वापस चले जाते हो, तो वो पूरा हुआ है। आप बुक लेने के लिए भी नीचे जाओगे और इंस्ट्रक्शन लिए भी ना वापस आ जाओगे। तो यहाँ पे मिक्स्ड नर्व्स का क्या काम है? वो देके भी जाता है इंस्ट्रक्शन, वापस से इंस्ट्रक्शंस उसके रिगार्डिंग लेके भी जाता है। क्लियर किड्स? once again I am reading all the three nerves, okay? Sensory nerves carry messages from the sense organs to the spinal cord and brain. Motor nerves carry instructions from the brain or the spinal cord to the sense organs. Now mixed nerves carry messages to the brain. ब्रेन के लिए मैसेजेस कैरी भी करती है as well as उसके पास से बैक इंस्ट्रक्शंस लेके ब्रेन को वापस उसको देके जाती है। I hope so kids you clear about nerves के बारे में पता चला। How many types of nerves are there? There are 3 types of nerves are there, right? Which are they? Sensory nerves, motor nerves, and last one कौन सी? Mixed nerves, right? So now here we completed about nerves. Now let's move to the spinal cord. Spinal cord हमारे बॉडी में उसका क्या वर्क है वो देख लेते हैं। The spinal cord is a thick bundle of nerves which extends down from the brainstem. मतलब spinal cord क्या है? एक thick bundle of nerves कि उसमें एक बंडल होता है नर्व्स में, इसमें अंदर बहुत नर्व्स होती है, बहुत सारी नर्व्स होती है, उसका एक बंडल होता है। वो एग्जैक्टली ब्रेन हमारे जो ब्रेन स्टेम है ना उसके नीचे से जाता है। किड्स मैं यहाँ पे आपको इमेज शेयर करूंगी, वो जो बंडल है ना वो दिख रहा है, उससे क्लियर हो रहा है ना कि इसके नीचे है ब्रेन स्टेम के, उसको एक्सटेंड करके नीचे जा रहा है, राइट प्लीज? It is surrounded and protected by the backbone. वो backbone से protected रहता है, उस वजह से उसमें कुछ भी परेशानी होती नहीं। It carries messages to and from the brain and the rest of the body. वो क्या करता है? सारे के सारे messages carry करता है ब्रेन के पास से and the rest of the body. दूसरे ब्रेन से भी मैसेजेस को कैरी करता है और दूसरे कोई भी पार्ट से मैसेजेस को कैरी कर लेता है। क्लियर किड्स? तो ये था स्पाइनल कॉर्ड का वो। किड्स once again I am reading about spinal cord. The spinal cord is a thick bundle of nerves which extends down from the brainstem. It is surrounded and protected by the backbone. वो बैकबोन के आजू बाजू में वो प्रोटेक्टेड है, उसके आजू बाजू में वो सराउंडेड है। It carries messages to and from the brain and the rest of the body. वो मैसेजेस को कैरी करता है, ब्रेन के भी मैसेजेस कैरी करता है और दूसरे बॉडी पार्ट्स के भी मैसेजेस को कैरी करता है। क्लियर किड्स? तो ये था अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ reflex action, last topic, reflex action. Okay, a reflex action is one of the ways by which the body protects itself from harm. reflex action एक ऐसा एक्शन है जो
हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है। कोई भी हार्म मतलब कोई नुकसान होता है उससे हमें रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएटली हमें प्रोटेक्ट करता है। These action takes place very fast and is done without any immediate instructions from the brain। मतलब ये ब्रेन की इंस्ट्रक्शन का राह देता नहीं, वो इमीडिएटली एक्शन होती है उसकी, तो उससे वो क्या करता है, फटाफट से उसका वर्क में अप्लाई कर देता है। अगर कोई भी चीज गर्म है तो ब्रेन ने कमांड नहीं दिया कि हाथ ले ले, तो मेरे हाथ तो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, राइट। तो रिफ्लेक्स एक्शन का क्या काम होता है कि वो ब्रेन का कमांड भी नहीं देखते, अगर उसको कुछ भी खतरा फील होता है तो इमीडिएट वो अपने आप को एक्शन में अप्लाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, when our hand comes in contact with something very hot or sharp, we pull it away instantly and automatically even before the brain realizes the danger। जब भी हम गर्म चीज हॉट या तो फिर शार्प खाने वाली चीज हो ना, जैसे नाइफ सीजर हो, तो इमीडिएटली हमारे ब्रेन को तो उसके रिगार्डिंग पता भी नहीं होता। अगर अचानक से हमारा भी ध्यान नहीं है, यहाँ पे कोई भी शार्प चीज है मैंने हाथ रख दी, तो ब्रेन को तो नहीं पता चलेगा क्योंकि मेरी आईज वहां पे नहीं, राइट। तो उस फटाफट से ये रिफ्लेक्स एक्शन हाथ हटा लेगा, मेरा क्या करेगा, हाथ हटा देगा। क्लियर किड्स? This automatic response of the body to a change in the surroundings is called the reflex action। ये हमारे बॉडी में ये जो ऑटोमेटिक चेंज आता है ना, ऑटोमेटिक हम हाथ ले लेते हैं नेचुरली, तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड। Other examples of reflex actions are blinking of eyes, sneezing and salivating। हमारे blinking of eyes ये भी अचानक से ही होती, कचरा जाता है आईज में तो हम अचानक से बंद कर देते हैं, राइट। तो वो भी एक अचानक हुआ, तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। स्नीजिंग, छींका या प्रयोग, वो भी अचानक से आ जाती है, राइट। तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारी की सारी चीजें होती है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन से। Kids, once again I am reading all the things about reflex action. A reflex action is one of the ways by which the body protects itself from harm. These action takes place very fast and is done without any immediate instructions from the brain. For example, when our hand comes in contact with something very hot or sharp, we pull it away instantly and automatically even before the brain realizes the danger। This automatic response of the body to a change in the surroundings is called a reflex action। It is controlled by the spinal cord। Other examples of reflex action are blinking of eyes, sneezing and salivating। So kids, here we completed all the things about today's session, right? In next session, I am going to explain about sense organs। यहाँ पे मैं सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स के लिए आपको डेप्थ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आईज, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द आई, फिर द नोज, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द नोज, फिर ईयर्स, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, फिर द टंग और अबाउट द स्किन। तो ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। हियर राइट नाउ, इस सेशन के बाद आपके पास एक पीडीएफ आएगा जिसमें दीदी ने आपको 2S डायरेक्टेड करके भेजा होगा। यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ। आई होप सो कि आपको इजी रहेगा, इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको इजी रहेगा। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ। ओके किड्स, तो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।